चालू करू सुरू करूयात. येस मॅम. So friends, I am also going to take in this session the fundamentals of intellectual property rights. So here I will explain you various facets of intellectual property rights, right? So let's start with IPRs. So friends, see this image is there. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata abhithanam dharmasyam tadatmanam srijamyam. ये जो पिक हम देखते हैं इससे हमें याद आती है द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत, है ना. तो ये पर्टिकुलर वॉर जो है उसका एक लाइव कमेंट्री संजय नामक व्यक्ति ने अंदर धृतराष्ट्र जी को दी थी. इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि क्या हम ये चीज को एक एजम्पशन के रूप में ऐसा नहीं कह सकते कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाज नोन एट दैट टाइम आल्सो. यस, वी कैन अज्यूम दैट. इस पर्टिकुलर युद्ध में बहुत सारे शस्त्रों और अस्त्रों का प्रयोग किया था. वर्चस्त्र, ब्रह्मास्त्र, एटसेट्रा एटसेट्रा. Can't we compare this with the missile skirts and atom bombs today? That means the weapon technology was also known to the people at that time also. देखिए, हम हमारे मेडिकल क्षेत्र पे बहुत गर्व महसूस करते हैं. अभी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन आम है, घुटने का ट्रांसप्लांटेशन आम है, लेकिन दिस इज द केस ऑफ हेड ट्रांसप्लांटेशन, isn't it? Can't we assume one thing over here? Yes, medical sciences at that time were more advanced than of today. तो ये सब assumptions के पीछे बताने का एक मकसद है मेरा कि God has given brain, imagination and creativity to human being, and Mother Nature has blessed us with abundant of physical and biological resources. By using these two things, man started creating new inventions. लेकिन पहले जो इन्वेंशंस होते थे वो पब्लिक डोमेन में चले जाते क्योंकि आईपीआर नहीं था. लेकिन अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास में है, सो यू कैन प्रोटेक्ट योर इन्वेंशंस ओवर हियर, राइट. व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज? इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, इज द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, बौद्धिक संपदा. और उसको अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो बन जाता है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट. We have immovable property, immovable property, but there is third type of property now, that is intellectual property, and it's very important for the nation. The intellectual property is broadly divided into two categories: industrial property and copyright and related rights. We have already discussed this copyright and related rights. Now we have to see all these facets. Under industrial property we get patent, design, trademark and geographical indications. Means the intellectual property which is exploited in industries, right? Then see, when हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी है तो उसका मालिक होता है, so ownership right is always there. When it is intellectual property, it is IPR. आपके पास आइडिया है और उसको आपने एक्सप्रेस किया, it becomes a matter of copyright. आपके पास में आइडिया है, उसमें इनोवेशन है, वो इन्वेंशन बन जाता है, that can be patentable. You have idea जो आपको क्वालिटी का अलार्म देता है, that can be the trademark. आइडिया है और उसको आपने बहुत अच्छा लुक दिया है, अपीयरेंस, that can be the industrial design. And suppose if you don't want to disclose the technology, then it becomes the trade secret. Okay, जैसे how a single commodity can be secured from various directions under these IPRs. See, this is a bike. You can see over here the attractive seat shape. Okay, that is the matter of industrial design. Then इसके साथ जो बुकलेट आता है, that can be copyrighted. इसका जो functioning है, that is the technology used. It is patented. And of course, जिस नाम से, जिस लोगो से ये मार्केट में सेल होती है, that is the trademark, that is TVS, right? So in this way, a single commodity can be protected under
दिस आईपीआर। ऑफकोर्स ये जो कोका कोला है, आपने देखा है इसका ट्रेडमार्क है, बहुत पॉपुलर ट्रेडमार्क है। शेप ऑफ द बॉटल कैन बी द डिजाइन, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है दैट इज द ट्रेड सीक्रेट। उन्होंने उसका पेटेंट नहीं लिया है, क्योंकि पेटेंट लेने के लिए आपको वो जो इन्वेंशन है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है फुल्ली, राइट। सो दैट इज द मैटर ऑफ ट्रेड सीक्रेट। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ द कुकर कैन बी पेटेंट राइट, कैटलॉग booklet can be copyrighted, and this is the matter of design, and of course premier is the trademark. Okay, like that you can see the things are protected under IPRs. See, this particular IPR industry, it comes under Ministry of Commerce and Industry, Department of Promotion and Industry and International Trade. और जो CG होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स एंड जीआईएस, उसके अंडर ये सब ऑफिसेस है। पेटेंट एंड डिजाइन के ऑफिसेस इंडिया में कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में है। ट्रेडमार्क से मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद में है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का एक ही ऑफिस है, दैट इज सिचुएटेड एट चेन्नई। और नागपुर हैज बिकम अ हब फॉर आईपीआर एक्टिविटीज, क्योंकि इंडिया की पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पेटेंट्स की स्पेशल लाइब्रेरी नागपुर में थी। नाउ इट has become RGNIRDM, that is राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। यहाँ पे आईपीआर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे चलाए जाते हैं। देखिए ये जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, लेकिन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन है जो है वो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड पब्लिक एजुकेशन। दिस इज ipindia.nic.in, ये हमारा ऑफिशियल होम पेज है आईपीआर का। यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक्स आर गिवन, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स, जीआईएस। और आपको ये एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है आईपीआर में, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर लिंक गिवन। और जो डेटाबेस है हमारे पेटेंट के, ट्रेडमार्क के, डिजाइन के, तो ये पब्लिक सर्च जो है लिंक, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, राइट। Now, what patent is? Patent is an exclusive right given by government to the patentee, okay, for a limited period of time for making, using, selling, importing products or process of producing the products or authorizing others to do so. यानी पेटेंट आपका मोनोपोली राइट है। अगर आपको पेटेंट मिल जाता है तो 20 इयर्स तक आपको वो मोनोपोली राइट होता है। इसमें आप खुद के लिए उसको यूज कर सकते हो, खुद प्रोडक्शन कर सकते, किसी और को आप किराए से दे सकते हो प्रॉपर्टी को, या आप उस चीज को बेच सकते हो, है ना, रॉयल्टी लेके। बट इट इज फॉर 20 years ओनली। एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू द पेटेंट एप्लीकेशन। अगर आप रिन्यू करना फेल हो जाओगे तो इट बिकम्स इट विल बी अंडर पब्लिक डोमेन। ओके, नाउ ये जो 4 ऑफिसेस मैंने कहा है उसके लिए जो इंडिया के स्टेट्स है वो बांट दिए, जुरिस्डिक्शन तय है उनका। तो इफ यू आर सिटिंग एट नागपुर तो आपको मुंबई पेटेंट ऑफिस में ही फाइल करना है ना। दूसरे ऑफिस में अगर आप फाइल करोगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम। देयर आर वेरियस एक्ट्स एंड रूल्स टू गवर्न दिस आईपीआर इन इंडिया। तो पेटेंट के लिए आप देख सकते हो 1970 का पेटेंट एक्ट है, बाद में उसमें अमेंडमेंट्स होते गई। डिजाइन एक्ट 2008, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, जीआई एक्ट है, देन कॉपीराइट का एक्ट है, देन यू कैन सी बायोडायवर्सिटी का एक्ट। अभी पेटेंटेबिलिटी क्या होता है, पेटेंट किसको मिल सकता है? पेटेंटेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया सबसे पहले नॉवेल्टी होना चाहिए, वो इन्वेंशन होना चाहिए ना। और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोसेस को पेटेंट दिया जाता है, लेकिन उसमें नॉवेल्टी होना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए। दूसरी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसमें होना चाहिए। और तीसरी चीज उसमें इनोवेशन कुछ तो भी होना चाहिए, तो वो पैटेंटेबिलिटी के लिए उचित माना जाता है। ओके, तो इट इज द इन्वेंटिव स्टेप। अभी देखिए एक सिंपल सा उदाहरण मैंने यहाँ पे लाई हूँ। दिस इज द टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। देखिए ये फोन नाउ वी आर इन 5G समझ लीजिए, है ना। सो दीज आर मॉडिफिकेशंस ओवर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, राइट। और हर टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन के लिए यू कैन अप्लाई फॉर पेटेंट बिकॉज यू कैन प्रूव द नॉवेल्टी क्राइटेरिया ओवर हियर। अभी देखिए जैसे
जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन है जो हम लास्ट ईयर से लॉकडाउन देख रहे हैं, तो उसमें पैंडेमिक सिचुएशंस में एज पर द सिचुएशंस बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गई मार्केट। ये जो है ये थाई मॉल्स का एक इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये लिफ्ट है, ओके, लेकिन यहाँ पे बटन्स हाथ से नहीं दबाना है, उसके लिए आपको पैर में प्रोविजन दिया है बटन्स दबाने के। तो एज पर द सिचुएशंस टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग रूप में उपलब्ध होती है। देखिए हैंड सैनिटाइजर, हमें वो हैंड सैनिटाइजर तो पता है, लेकिन ये स्टैंड्स तो ये पैंडेमिक में आए हैं अभी, यानी इसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, पैर से उसको पुश करना है। सो दिस इज ऑल्सो सम इनोवेटिव थिंग्स वी हैव गॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो सियास इंजीनियर डेवलप्स कॉन्टैक्टलेस स्क्रीनिंग मॉड्यूल टू कंटेन कोविड-19, है ना। तो कॉन्टैक्टलेस स्क्रीनिंग मॉड्यूल उन्होंने जो है वो तैयार किया। देन यू कैन सी दीज आर आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्या किया, फेस मास्क बनाए फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स टू फाइट कोविड-19 एंड आल्सो प्लास्टिक वेस्ट। तो ऐसे जैसे जैसे बोलते हैं ना, जरूरत जब आन पड़ती है तब अपने आप इन्वेंशंस होते हैं, तो पहले भी होते थे अभी भी होते हैं। जैसे इनोवेशन, सम इनोवेटिव यूज आपने ढूंढ के निकाला एग्जिस्टिंग चीज का। दिस इज एक्चुअली द ग्लू स्टिक, लेकिन यू कैन आल्सो यूज इट एज द बटर स्टिक, ओके, सम इनोवेटिव यूज। देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, सेफ्टी पिन इतना छोटा सा इन्वेंशन है, okay? तो वॉल्टर हंट ने इसका इन्वेंशन किया और 1849 में उसको यूएस पेटेंट मिला, एंड ही सोल्ड हिज पेटेंट राइट्स टू द सेफ्टी पिन फॉर $400। देखिए छोटी सी सेफ्टी पिन के लिए उन्होंने उस वक्त में वो राइट सोल्ड किए $400, ओके। अभी जब आप स्पेसमेन नाम का एक यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस है, तो वो यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस में जब आप सेफ्टी एंड पिन ये कीवर्ड्स डालते हो तो आपको 1126 रिजल्ट्स आते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सेफ्टी पिन में ऐसे क्या क्या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो कि जिसके लिए 1126 रिजल्ट्स आते हैं। यू कैन सी दिस, so these are design patents, there is a provision of design patents also, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया थोड़े अलग है, उसको हर साल रिन्यू नहीं करना पड़ता है, और उसका जो टर्म ऑफ पेटेंट है वो 14 ईयर्स है, राइट। और अपना कन्वेंशनल पेटेंट जो है उसका टर्म ऑफ पेटेंट 20 ईयर्स होता है। वैसे ही मूर फिशपिन कंपनी जो है, एडविन मूर, इन 1900 he founded a new company with only $112. His first sale was one gross, that is a dozen of dozens of pushpins for $2. The next order was for $75, and his first bill of $1000 worth of pushpins to Eastman Kodak Company. इसका भी अगर आप स्पेसनेट डेटाबेस में पुश एंड पिन ऐसे कीवर्ड्स डाल के सर्च करोगे तो you will get 187 patents for this. Again, these are the design patents and you can see the images over here, right? अभी देखिए वेलक्रो, वेलक्रो जैसे हम जाते हैं थोड़ा सा झाड़ियों में, तो ये जो गोपरू कहते हैं वो एक बीच होता है, वो हमारे कपड़ों को ऐसे चिपक जाता है, राइट। उसका एक स्विस इंजीनियर ने एनालिसिस किया एंड ही इन्वेंटेड वेलक्रो, और उसने पेटेंट भी लिया है। एंड वेलक्रो इज सो यूजफुल इन एवरी इंडस्ट्री नाउ, राइट। फुटवेयर इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, वेलक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इन्वेंशंस होते हैं। देखिए पेटेंटेबल क्राइटेरिया में अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्यूशन देते हो आप कुछ इस डिवाइस या प्रोसेस के माध्यम से, तो दैट कैन बी पेटेंटेबल। अभी देखिए एक सिंपल सी बात है, दिस इज द बाइसिकल स्टैंड, यू कैन सी ओवर हियर, है ना। तो इसके लिए जगह कितनी लगती है, वो बाइसिकल जितनी उसकी लंबाई है उतनी आपको जगह लगती है। लेकिन किसी ने एक वर्टिकल बाइसिकल स्टैंड ढूंढ के निकाला है, सो हियर सेविंग मोर देन 50% स्पेस, राइट। तो ये यूजफुल इन्वेंशन। उसके बाद में टाइम रिलीज टैबलेट्स पे भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे आर वर्किंग अप, राइट। कुछ फनी पेटेंट्स भी आप देखेंगे, जैसे एक यूएस का पेटेंट है, उसमें पोर्टेबल बाथ कैप्सूल है। जैसे पेशेंट्स के लिए जो उनको नहलाना होता है ना, बेड बैग्स,
और मसाज देना होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक पोर्टेबल बाथ कैप्सूल बनाया है। देन यू कैन सी इट इज ऑल्सो अ पेटेंट नंबर, यू कैन सी, आप देख सकते हो, बियर अम्ब्रेला। जैसे ये सन में बियर की बॉटल जो है वो गर्म हो जाती है, तो उसके लिए एक अम्ब्रेला बनाई उन्होंने डिवाइस, दैट इज नाम है उसका बियर अम्ब्रेला। देन दिस इज जूनियर जेल, देखिए यूएस का पेटेंट मिला है। ओके, तो बेबी को उसके बैक पे सुला दो, यहाँ पे स्ट्रैप्स है, और उसको पूरा आप ये कर सकते हो, वो कंफर्टेबली वहां पे रहता है, इधर उधर जाता नहीं, रिलैक्स करता है। ओके, और उसका नाम ही उन्होंने दिया है जूनियर जेल, राइट। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट इनोवेशन की तरफ मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगी, दैट इज इम्ब्रेस। इम्ब्रेस जो है ये बहुत ही ब्लेसिंग है इनमैच्योर्ड प्री मैच्योर्ड बेबीज जो होते हैं उनके लिए। तो उसका एक केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए आयशा, ये छोटी सी गर्ल है, उसका नाम है आयशा। ओके, हु वेटेड ओनली 1.1 kg at birth. Her father and mother lost their first two babies due to lack of proper medical care. They saved every single penny they had so that their third child could be born in a city hospital, a 4-hour walk from their village. Aisha had a very low chance of survival and was kept in an incubator under observation for 10 days. है ना, 10 दिन उनको incubator में रखा. However, as her parents' savings ran out, it was not possible to extend her stay in NICU. So it was at that point that Aisha was placed in Embrace Infant Formula for thermal support, है ना। तो इंक्यूबेटर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तब उनको ये जो एम्ब्रेस जो थर्मल सपोर्ट जो था उनको दिया गया। आफ्टर अबाउट a month, she gained sufficient weight and was allowed to go to home with her parents. देखिए कितना ये ब्लेसिंग है ये इन्वेंशन। ओके, इसका एक पेटेंट जो है वो उन्होंने लिया हुआ है। तो प्रीमैच्योर बेबीज के लिए बहुत अच्छा इन्वेंशन है। जैसे देखिए मूंगफली बेचते हैं, तो मैंने एक आईपीआर के ऊपर वेबिनार अटेंड किया था। वो सर ने बताया कि उनका कैंपस बहुत बड़ा है और उनके कैंपस के गेट पे एक मूंगफली वाला खड़ा रहता है, तो जो भी घूमते हैं शाम को इवनिंग वॉक के लिए उससे खरीदते हैं। तो एक दिन बोले, मैंने ऐसे उसको टोक दिया, क्या 1000-1200 का धंधा हो गया सर? तो वो एकदम से ये हो गया, नर्वस हो गया, क्या साहब मजाक कर रहे गरीब का, कहाँ होगा? बोले मैं एक जगह खड़ा रहता हूँ, जो आता है वो लेता है। फिर उन्होंने ऐसे कियोस्क बनाए थ्रू आउट द कैंपस, है ना, और उससे क्या है, उसको सिर्फ उसको रिफिल करते जाना है, तो उससे उसको बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो ऐसे जो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान में रखना। अभी क्या पेटेंट नहीं होता है, तो जो इन्वेंशन में नहीं आता, जिसमें नॉवेल्टी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं, और दूसरा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। देखिए an invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to the well established natural laws, जो नेचुरल लॉज है उसके अगेंस्ट में जाके अगर आप कोई चीज बोलते हो, इट कैन नॉट बी पेटेंटेबल। देन चोरी करने के नायाब तरीके पेटेंट नहीं होते। ओके, so method of theft, then injuring human beings, methods of adulteration of food, this cannot be patented. E equals to mc square, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, that is the matter of copyright, so these are excluded from patenting. Then you can see mere arrangement and rearrangement of known devices cannot be patented. Or treatment of human beings and animals, may it be medicinal, surgical, curative, prophylactic, then diagnostic, therapeutic, ये पेटेंट नहीं होता। नहीं तो बाईपास सर्जरी का पेटेंट किसी ने ले लिया, वो अकेला बाईपास मोनोपोली राइट करके बैठेगा, so it cannot be patented. Then मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है, अल्गोरिथम जो है, इट इज द मैटर ऑफ कॉपीराइट। ओके, लेकिन अभी नए अमेंडमेंट के हिसाब से इफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज एसोसिएटेड अलोंग विद हार्डवेयर, तो यू कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। और जो आर्टिस्टिक वर्क है, लिटरेरी, म्यूजिकल, सिनेमा, ये सब चीजें कॉपीराइट का मैटर होता है, सो दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पेटेंट। देन जो रूल्स होते हैं, जैसे दंगल में
लास्ट जो युक्ति होती है 5 पॉइंट वाली, है ना, उसके पापा उसको सिखाते हैं। तो ऐसे जो ये होते हैं गेम्स खेलने के मेथड्स होते हैं, तो एनीबडी कैन प्रैक्टिस एंड मास्टर देम, वो पेटेंट नहीं होते। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट इट इज द मैटर ऑफ कॉपीराइट। ओके, ये टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसके लिए अलग डोमेन है। देन अगर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है और जहाँ पे सीक्रेसी डायरेक्शंस है, तो वो पेटेंटिंग से अलग रखा जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और पार्ट ऑन द अर्थ पेटेंट नहीं होते। और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, जैसे हल्दी एंटीसेप्टिक है, हमको पता है, लौकी के बारे में पता है, आंवले के बारे में पता है, नीम के बारे में पता है, जो ऑलरेडी नोन टू द पीपल, इट कैन नॉट बी पेटेंटेड। दिस इज इम्पोर्टेंट। देन मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेथड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर कैन नॉट बी पेटेंटेड। देन हम देखेंगे कि अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो आपको इतने सारे चीजों से गुजरना पड़ता है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। लेकिन हर चीज के लिए आपको फाइल करने के बाद में आपको ये हर प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आपका पेटेंट फाइल होने के बाद में आप रिक्वेस्ट देने के बाद में उसको पेटेंट जर्नल होता है जिसमें पब्लिश किया जाता है फॉर गेटिंग अपोजिशन, राइट। अभी ये वाइपो का पेज है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल पे आईपीआर रेजिम को हैंडल करती है। ओके, और इनके कुछ पेटेंट डेटाबेस भी है, आप देख सकते हो। देन there is one more office which is situated in New Delhi, that is plant varieties and farmers rights, और इसका एक्ट जो है वो बना 2001 में। तो जो फार्मर जो नए नए ब्रीड्स ढूंढ के निकालते हैं, उस क्रॉप्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे किया जाता है। यू कैन सी दिस इज द ऑफिशियल होम पेज ऑफ plantauthority.gov.in। ओके, अभी देखिए आपके दिमाग में अगर कोई इन्वेंशन है, इफ यू आर इन्वेंटर, तो आपको कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, योर इन्वेंशन शुड बी न्यू। आपने पूरी तरह उसका स्टडी करना चाहिए और उसमें के नॉवेल्टी पॉइंट्स क्या है वो आपको नोट डाउन करना है। इट शुड नॉट बी डुप्लीकेटेबल। देन द इन्वेंशन शुड बी केप्ट सीक्रेट अंटिल द डेट ऑफ फाइलिंग। देखिए आपका इन्वेंशन जो है उसको सीक्रेट रखिए, किसी से शेयर मत कीजिए। जैसे कि सर ने कहा कि कैन आई पब्लिश इट नाउ आफ्टर फाइलिंग, तो आप फाइल करो पहले। अगर आपको लगता है कि उसमें पेटेंटेबल मैटर है तो यू गो फर्स्ट फॉर फाइलिंग। तो देर इज प्रोविजनल फाइलिंग सुविधा है आपके लिए कि आपको जो भी दिमाग में आया है उसको वैसे के वैसे रिपोर्ट करके आप फाइल करके वो एप्लीकेशन नंबर ले लीजिए। फाइलिंग डेट ऑफ फाइलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में पब्लिश कीजिए। वंस यू पब्लिश इन गुड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, तो क्या होता है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां पे कुछ महीने उसको रुकना पड़ता है पेटेंट फाइलिंग के लिए वगैरह वगैरह। देयर आर सम फॉर्मेलिटीज। ओके, तो आप किसी से भी, आपके कितने भी अच्छे दोस्त हो, उससे कभी भी शेयर मत कीजिए। कभी कभी ऐसे हुआ है कि पार्टीज ने शेयर कर दिया इन्वेंशन और दूसरे ने क्या किया, अपने नाम से फाइल कर दिया। तो अवॉइड दैट थिंग। एक चीज इसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि द इन्वेंशन शुड नॉट बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रॉब्लम मेरिट्स। देखिए यहाँ पे जो काम एक अड़गित्ते से हो सकता है उसके लिए आप इतना बड़ा मशीन बनाओगे, जबकि मार्केट में वो काम करने के लिए सस्ते और अच्छे तरीके उपलब्ध है, उसके लिए आप महंगे तरीके और कॉम्प्लिकेटेड तरीके ढूंढ के निकालोगे, तो वो पेटेंटेबल नहीं होते। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। और इन्वेंटर को क्या है, पेटेंट स्पेसिफिकेशन में क्लेम्स लिखने पड़ते हैं, तो उसके दिमाग में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और आफ्टर ऑल इतना सब हम खर्चा करते हैं पेटेंट फाइल करने का, पेटेंट फीस भरते हैं, उसको रिन्यू करते हैं, अटॉर्नीज की फीस भरते हैं। आफ्टर ऑल देयर शुड बी डिमांड फॉर योर इन्वेंशन। थ्री इडियट्स फिल्म में देखिए आखिरी का जो सीन है उसमें वो सब दोस्त मिलते हैं, तो उसका वाइफ फोटोग्राफर दोस्त पूछता है, अरे तो वही मांगुड़ी है जिसके नाम पे 400 पेटेंट्स है, 400 पेटेंट्स है और पूरा जापान जैसे घूमना चाहिए। तो आपका पेटेंट कैसा होना चाहिए? देखिए इसमें नॉवेल्टी तो है, 3 पैर का ट्राउजर इसने बना दिया, बट वेदर देयर विल बी डिमांड फॉर दिस ट्राउजर, तो देयर शुड बी
डिमांड फॉर योर इन्वेंशन। और ऑफ कोर्स आपको आपका इन्वेंशन कितना वैल्यूएबल है उसका रियलिस्टिक आइडिया जो है आपको होना चाहिए, राइट। हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन, ही इज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, एक सीईओ ऑफ सीएसआई, राइट। इन्होंने आईपीआर के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है। उन्होंने एक पंचशील दिया, भारत कैसा होना चाहिए। वे कहते हैं भारत में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमन सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी होनी चाहिए और इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए। इसको इलेबरेट किया तो वो कहते हैं क्रिएटिविटी है तो इन्वेंशन होता है, उसमें इनोवेशन पाया जाता है, वो पेटेंट होता है। लेकिन ये पेटेंट जब तक इंडस्ट्री में नहीं जाता है और एक्सप्लॉइट नहीं होता तब तक ये डेवलपमेंट का साइकिल पूरा नहीं होता। The age is not no bar for getting the patent। एक छोटा सा लड़का है 10 साल का, उसने एक गेम डिवाइस किया और उसको पेटेंट मिला। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग है। देन बहुत सारे पेटेंट बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पे है। थॉमस एडिसन जो है उनके नाम पे 1093 पेटेंट है, राइट। देखिए ये क्या है, इसको अगर आप गेस करेंगे, जैसे ये छोटा सा टुकड़ा है ना, तो ये छोटा सा टुकड़ा जैसे यहाँ पे 2 सितंबर से 6 सितंबर लिखा है, एक्चुअली दिस इज अ टैग। फॉरेन कंट्रीज में ब्रेड खाते हैं ना, तो ब्रेड के पैकेट पे लगाया जाने वाला टैग है ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसके कितने पेटेंट्स लिए गए देखिए। विथ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशंस दे गो फॉर अप्लाइंग पेटेंट। ये जो है इसको प्रेसिडेंट्स पेटेंट कहते हैं क्योंकि वो अब्राहम लिंकन के नाम पे। ये है पचौरिया साहब, इनको एक एनआरडीसी का बेस्ट पेटेंट अवार्ड मिल रहा है। ओके, यू कैन सी द अवार्ड एंड अमाउंट। एनआरडीसी हर साल एक बेस्ट पेटेंट अवार्ड देता है इंडिया से, एनआरडीसी न्यू दिल्ली। और ये अवार्ड उनको मिला उस साल। उनका इन्वेंशन क्या था, तो केमिकल्स के गैलन्स जो यहाँ से वहां चले जाते हैं तो उसमें स्मगलिंग होता था, बीच रूट में ही उसमें मिलावट होती थी। तो उन्होंने ये गैलन्स के लिए ऐसा पिलर क्लोजर ढूंढ के निकाला, ठीक है, जिससे ये मिलावट का काम कम हो गया। तो उस आविष्कार के लिए उनको बेस्ट पेटेंट अवार्ड दिया गया उस साल। देखिए ये क्या है, एक्चुअली इन्वेंशंस कैसे जन्म लेते हैं। दिस इज आंख ना, आई, दैट टू बिल्ली की आंख है। बिल्ली की आंख रात में अंधेरे में चमकती है। एक साइंटिस्ट अपने घर में गए, अंधेरा था रात को, एक बिल्ली कूदी, उसकी आंख चमकी, तो उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट आया दिमाग में और उन्होंने इन्वेंट किया। यू कैन सी दिस वन, सॉरी, उन्होंने, यू कैन सी दिस थिंग ना। यस मैम। तो उन्होंने, हाँ उन्होंने इस चीज का आविष्कार किया, कैट आइज नाम है उसका। कितना बड़ा ब्लेसिंग है ये, रात को जो रोड पर ट्रैवल करते हैं जस्ट फॉर अ फन, इन्होंने भी आग का आविष्कार किया जो आदि मानव है ना। ओके, सो पेटेंट के बारे में हमेशा ख्याल रखना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले फाइल करेगा उसको उसका फायदा मिलेगा। देर आर मेनी ओपन एक्सेस पेटेंट डेटाबेसेस अवेलेबल। ये स्पेसनेट जो है वो यूरोपियन डेटाबेस है, द लार्जेस्ट पेटेंट डेटाबेस of the world। Okay, so you can search this particular database। Then every national patent office has got its own database और हमारा इंडिया का भी है। आप पब्लिक सर्च या लिंक में से आप ये सब डेटाबेसेस जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ये पेटेंट ई रजिस्टर है, इसमें आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर कीवर्ड मैंने दिया तो 4723 पेटेंट्स जो है हमारे इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम से रिट्रीव हुए हैं। कोई भी एक पेटेंट आपको देखना है तो क्लिक कीजिए, इसको बिब्लियोग्राफिक डेटा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेशन स्टेटस, इस प्रकार से आपको यहाँ पे वो पेटेंट खुल जाता है। ठीक, जैसे पेटेंट आप फाइल करते हो तो कुछ महीनों के बाद में उसको पेटेंट जर्नल में पब्लिश किया जाता है। ओके, उसका वो प्रोसीजर है, राइट। उसके बाद में ई फाइलिंग इज पॉसिबल, दिस प्रोविजन इज गिवन। ये अपना पेटेंट सर्च के लिए ये डेटाबेस है, इसमें आप
आपके हिसाब से सर्च कर सकते हो कीवर्ड्स डाल के। एंड दिस इज द फुल पेटेंट, यू कैन सी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम्स। अभी आई एम कमिंग टू डिजाइन। द एक्सप्रेशन design means only the feature of shape, configuration, pattern or ornament applied to any article. देखिए, the attractive look of the product can also be protected under industrial design. इसका जो टर्म होता है वो 10 years होता है, लेकिन आप 5 साल के लिए एक्सटेंड उसको कर सकते हो, टोटल 15 years। इसको समझाने के लिए मैं आपको केवल एक ही स्लाइड दिखाऊंगी एंड दिस इज द स्लाइड, यू कैन सी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स जो होती है वो हर एक ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का शेप अलग होता है, ये आपने नोटिस किया होगा, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स में आते हैं वो इतने सारे हैं, वैलेट्स है, ब्रीफकेस है, चप्पल्स है, आयरन है, देन टूथब्रशेस, पेन्स, है ना, सीजर्स। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी इंडस्ट्रियल डिजाइन में आते हैं, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरीज भी आते हैं। और अगर आप टूथब्रश लेंगे तो एक दुकान में जाएंगे तो वो खुद ही आपको 10-12 डिजाइन उसके दे देगा। ओके, नाउ ये पर्टिकुलर जो है वो उसका डिजाइन का डेटाबेस है जो आप सर्च कर सकते हो। देन आई एम कमिंग टू द थर्ड वन, द वेरी पॉपुलर ट्रेडमार्क। जो आईपी है, द मोस्ट पॉपुलर आईपी ट्रेडमार्क, इट इज अ विजुअल सिंबल इन द फॉर्म ऑफ अ word, a device or a label applied to articles of commerce as distinguished from similar goods manufactured or built in by others। वेरी इंपॉर्टेंट आईपीओ ये होती है। और इसमें क्या है, ट्रेडमार्क डिजाइन करना इटसेल्फ इज अ स्किलफुल जॉब। इसमें कभी कभी लेटर्स एंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एप्सन है, बाटा है, गोदरेज है। देखिए, आप आंख बंद करके गोदरेज अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपके दिमाग में जी ऐसा ही आएगा आपके आंखों के सामने। दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडमार्क on your mind. It gives you the quality of the product. Okay, it alarms you. कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क होते हैं जिसमें लेटर्स यूज किए जाते हैं, डिजाइन यूज किया जाता है, लेटर्स एंड लोगो का यूज किया जाता है। देन कुछ कुछ ट्रेडमार्क्स में पंच लाइन्स होती है, जैसे अपना मूनलाइट स्टूडियो है नागपुर में, उनका कैप्शन है, पंच लाइन है, इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल वी विल मेक यू ब्यूटीफुल। ओके, तो इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड्स के टैगलाइंस है, लाइक लाइफ इज गुड, ओके, इट इज एलजी। देन इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, इट इज बिग बाजार। इट इज कनेक्टिंग पीपल, इट वाज नोकिया। देन द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, इट इज एचएसबीसी। ओके, देन कम्स हियर, यू कैन सी अच्छा लगता है, is Club HP. It's all about Imagineering. It is L&T. जाओ तो जानो, Truly Asia. It is Malaysia True Diesel. And Test भी, Health भी, it is Maggi Noodles. Okay? So these are the punchlines. इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लला, ठंडा मतलब कोका कोला, pure for sure. Okay? So this is also a part of trademark. I am loving it. है ना? McDonald's arch. Then some trademarks they are using pictures and drawings, जैसे MSN butterfly है। Okay? Then logos they are using. See, this is apples. Okay. Then this is NBC speak call. McDonald's double arches. See, there is a concept of sound trademark also. ये जो बाइक है इसमें साउंड है, सिंह गर्जना का साउंड है। Okay? So it is just like trademark, लेकिन यहाँ पे जो expression है, it is sound expression. Then these are sound marks. देखिए, ये जो विंडोज होता है वो ओपनिंग साउंड जो होता है वो पिक्युलर ओपनिंग साउंड होता है, राइट, आपने मार्क किया होगा, दैट इज साउंड ट्रेड। देन ये न्यूज चैनल्स के कुछ ट्रेडमार्क्स है, एनडीटीवी है, देन यू कैन सी आज तक, बीबीसी, स्टार न्यूज एंड ऑल। देखिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और ये शुद्ध मिनरल वाटर में आपको देती हूँ ओनली फॉर ₹5, आप नहीं लेंगे ये बॉटल को उससे। लेकिन अगर मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड,
अगर मैं आपको ये बॉटल देती हूँ तो आप 20 रुपीज में आराम से खरीदोगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में स्टिकर लगा हुआ है, बिस्लेरी। बिस्लेरी इंटरनेशनल कंपनी है, हम जरूर लेंगे। देखिए ये ट्रेडमार्क का ये एक बहुत खासियत है कि लोगों के दिमाग पे ये राज करता है ट्रेडमार्क, एंड इट अलार्म्स यू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए ये ट्रेडमार्क का ऑप्शन हो सकता है क्या? यस, इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी। और ये ट्रेडमार्क जो होता है वो 10 साल के लिए मिलता है और हर 5 साल के बाद में वो रिन्यू होता है। और आप पिढ्यानुपिढ्या त्याला रिन्यू करत जा, काहीही प्रॉब्लेम नाही। दॅट इज वाय इट इज द मोस्ट पॉप्युलर प्रॉपर्टी। ये जनरेशन टू जनरेशन आपके पास में रह सकता है। ओके, नाउ अगर आपने ये देखा होगा तो एक सर्वे हुआ था, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो सबसे पहले नंबर पे कोका कोला का बोली लगा था 68.9 बिलियन डॉलर्स में। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट था 65.1 बिलियन डॉलर्स के लिए। 52.7 बिलियन डॉलर्स के लिए आईबीएम था एंड लास्ट वन वाज नोकिया। तो इस प्रकार से वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क जो है वो हमने जज किए थे। व्हाई बिस्लेरी? बिकॉज इट हैज वैल्यू, रेपुटेशन, इट इज ओन्ड बाय बिस्लेरी इंटरनेशनल। इसलिए वो जो रैपर उसके ऊपर लगता है, स्टिकर उसके ऊपर लगता है, उससे हमारी इम्यूनिटी पावर अपने आप जाग जाती है। तो बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क, कोई और आपका ट्रेडमार्क अगर वायलेट कर रहा है तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो यू कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, देखिए अदिदास, इसको लिख दिया अबीबास। दिस इज आउटलुक, दिस इज मैगजीन, रेड व्हाइट एंड रेड कलर, ये लिख दिया देवनागरी में आउटलुक। लोगों को इस यहाँ पे डाउट हो सकता है, लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं, उनको लगता है ये आउटलुक का हिंदी वर्जन है। ओके, देखिए हम लोग ट्रेडमार्क के साथ में हमारा जीवन इतना ज्यादा जुड़ा है। देखिए मैं जस्ट रीड करती हूँ तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट ट्रेडमार्क इज और हमारा जीवन कैसे ट्रेडमार्क में है। 6 AM अजंता सिटीजन, 6:30 AM Colgate close-up, 7:30 AM Nescafe Tajmal Red Label Taza, then 8 AM Dettol Lifebuoy Lux Synthol, 8:30 AM Kisan Fruit Jam Maggi Tomato Ketchup Kellogg's, 9 AM Maruti Suzuki Hero Honda TVS Toyota, 9:30 AM IBM Lenovo SCL HP, 10:30 AM Yahoo Reddit Gmail Hotmail, 11:30 Canon Fax Intercom, then 1:30 p.m. McDonald's, Domino's Pizza, Pizza Hut, then Sagar Ratna, 6 p.m. PPR, Big Cinema, V-Mart, Easy Day, 8 p.m. Sony, Star Plus, Discovery, CNN, and 10 p.m. Good Night, All Out Kit। देखिए हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पूरे ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो these are some marks from petrochemical industries। Then there are various types of marks, that is service mark, PTPC। ये एक courier service है, so they are not selling you the products, they are giving you the service, so it is called as service mark। ISI, it is certification mark, आप it is certifying the quality of the product। okay, फिर वेल नोन मार्क्स होते हैं जैसे मर्सिडीज, दिस इज वेल नोन मार्क। देन सर्विस मार्क होता है जैसे किंगफिशर, किंगफिशर का जो उड़ान वाला मार्क था, है ना, जो एयरलाइन सर्विस थी, दैट वाज सर्विस मार्क। और उनका दूसरा प्रोडक्ट जो है दैट वाज द ट्रेड मार्क। जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, लॉन्ड्रीज, क्लीनर्स, ये सब जो देते हैं वो सर्विस देते हैं, तो उनका जो मार्क होता है उसको सर्विस मार्क कहते हैं। और उसका जो है सब उसका ट्रेडमार्क के जैसे ही नियम उसके ऊपर लागू होते हैं। देखिए मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं। वैसलीन, सेम कॉम्बिनेशन, ओके, कलर कॉम्बिनेशन, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स। वैसलीन, न्यू वैसोलाइन, ब्लू लाइन वैसोलिन, वैसोलाइन, ब्लू स्टार वैसोलिन, इट्स सेम कलर कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से आपको मिसगाइड किया जाता है मार्केट। देन मैं दो केसेस आपको बताऊंगी इंफ्रिंजमेंट के। लैक्मे, है ना, सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनी, उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। एक दूसरे सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनी ने खुद का ब्रांड नेम रखा लाइक मी। ओके, लोग
मिसगाइड हो गए और लैक्मी प्रोडक्ट समझ के लैक्मी घर ले जाने लगे। तो ये लैक्मी वाले ने कंप्लेंट किया और इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू वर्ड्स आर आल्सो फोनेटिकली सिमिलर, so there is every possibility of deception and confusion being caused in the minds of prospective buyers, है ना। तो इस प्रकार से इन्फ्रिंजमेंट्स होती है। कोलगेट के बारे में भी हुई सेम, रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेंटल क्रीम, दूसरों ने बनाया कोलिजेट। ओके, अगेन देयर वाज द सेम कॉन्सेप्ट कि उसको इंजेक्शन किया गया। देन आप देखेंगे कि ये जो ट्रेडमार्क है उसका ये पेज है और यहाँ पे आप देखेंगे इसका ई रजिस्टर है और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उसमें। जैसे मैंने गोदरेज मुझे देखना था तो मैंने GOD 3 वर्ड्स दिए तो ये गोदावरी वगैरह गोदरेज यहाँ पे ट्रेडमार्क्स आ गए। देखिए दिस इज द सर्टिफिकेट फॉर ट्रेडमार्क एंड देखिए दिस इज फॉर गोदावरी, दिस इज द सर्टिफाइड व्यापार चिन्ह दैट इज ट्रेडमार्क। जैसे एप्पल के बहुत सारे हैं, यू कैन सी। एक ट्रेडमार्क का इंटरनेशनल डेटाबेस है जो वाइपो मेंटेन करता है, दैट इज नोन एज मैट्रिक एक्सप्रेस डेटाबेस। इसमें अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के नाम से अगर सर्च किया तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के 85 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है। उसमें आप देखेंगे दिस इज वी आर फैमिलियर विद दिस, isn't it? There are so many. Now I am coming to geographical indications. That is the fourth property, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जैसे कोई प्रोडक्ट जो है वो जियोग्राफिकल टेरिटरी के नाम से अगर जाना जाता है, जैसे नागपुर का संतरा, भुसावल की केली, नासिक के अंगूर। ओके, जैसे आप देखेंगे कि रत्नागिरीचा हापूस होता है, ठीक है, देवगिरीचा हापूस। तो इस प्रकार से when it is known by geographical locations, so that can also be protected under geographical indications. इसके एग्जाम्पल्स है दार्जिलिंग टी, नागपुरी संतरा, चंदेरी साड़ी, मैसूर रोजवुड इडली, कोल्हापुरी चप्पल, देन सोलापुर चद्दर, कुल्लू शॉल, मैसूर सैंडल सोप। देन राइस में बासमती नेल्लोर, पंजाब मध्य प्रदेश का गेहूं, Kurg orange, Alfonso mango, then Nagpur orange, then Pochampalli cat, Kanchipuram sari, Kota Doriya. This is Kota की, तिरुनावली का हलवा, आगरा का पेठा, sweet chocolates. This is Kurg orange. Then see, this is Nanjangud banana, Kangra tea, Darjeeling tea, Mysore अगरबत्ती, Mysore sandal soap, then Aranmula Kanadi, then Channapatna, चेन्नई के नजदीक में गांव है, वहाँ पे टॉयज, then rosewood inlay of मैसूर, देन कोयम्बतूर का वेट ग्राइंडर एंड दिस तिरुपति बालाजी का लड्डू, उसका भी हुआ है। देन आप देखेंगे वाइन्स एंड स्पिरिट्स में गोवा की फेणी, देन शैंपेन, देन स्कॉच, स्कॉटलैंड की विस्की, फेरी वाइन्स। ओके, देखिए हु कैन रजिस्टर हियर, इट इज टेरिटरीज प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी। तो कोई भी NGO, व्यापारी संघ, फिर उसके बाद में कोई भी एग्रीकल्चर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसका एक ही ऑफिस इंडिया में है, चेन्नई में, और ये ऑफिस तब खुला जब बासमती राइस की कंट्रोवर्सी हुई। बासमती का टेक्समती के नाम से US पेटेंट दिया और हमारा बासमती एक्सपोर्ट होने से रह गया। तो बासमती को वापस लाने के लिए उस वक्त प्रोडक्ट पेटेंट की प्रोविजन हमारे पेटेंट एक्ट में नहीं थी, ओनली प्रोसेस पेटेंट की प्रोविजन थी। तो उस वक्त बासमती राइस को हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन करके रजिस्टर करने के लिए ये ऑफिस खोले थे। देखिए ये उसका ऑफिशियल होम पेज है और ये उसका डेटाबेस है, कितने जियोग्राफिकल इंडिकेशन आज तक उन्होंने दिए हैं। तो उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे देखेंगे। दार्जिलिंग टी जो था, वो जो एक वुमन का ये है विद टी लीव्स, तो उसका लोगो प्लस दार्जिलिंग टी, ये नंबर 1 और नंबर 2 GIs है हमारे। और जो बासमती राइस के लिए हमने ये ऑफिस खोला वो अभी भी पेंडिंग में। देखिए
जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो साउथ इंडियन स्टेट्स आर मोर अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके, और ये जो जीआई दिए गए हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चर्ड और फूड स्टफ्स के लिए दिए गए हैं। कुछ एग्रीकल्चरल जीआईएस के मैंने यहाँ पे आपको लाई हूँ, जैसे पलक्कदन मट्टा राइस ऑफ केरला, मैसूर बीटल लीफ ऑफ कर्नाटका, देन मलबार पेपर फ्रॉम केरला, देन जैस्मिन है तो मैसूर उडुपी एंड हड़गली जैस्मिन, देन इलायची जो है दैट इज अलेपली ग्रीन कार्डमम एंड फ्रॉम केरला एंड कुर्ग ग्रीन कार्डमम फ्रॉम कर्नाटका। देन यू कैन सी मैंगो में लक्ष्मण भोग फ्रॉम मैंगो फ्रॉम वेस्ट बंगाल, खिस्सापति फ्रॉम हिमसागर वेस्ट बंगाल, फासली फ्रॉम मालदा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे नागा मिर्च ऑफ नागालैंड है। देन यू कैन सी दशहरी जो है वो यूपी का है। तो इस प्रकार से सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिनके जीआई हो गए हैं। देखिए फ्रॉम महाराष्ट्र इट इज पुनेरी पगड़ी, इसका हो चुका है। स्ट्रॉबेरी फ्रॉम महाबलेश्वर, येवलाची पैठणी, देन लोनावला चिक्की, कोल्हापुरी साज, नासिक की अंगूर, देन नागपुर का संतरा, भुसावल का केले। तो ये दीज आर जीआई फ्रॉम महाराष्ट्र। जीआई का एप्लीकेशन जो होता है वो जीआई जर्नल में पब्लिश किया जाता है फॉर गेटिंग द अपोजिशन। और जीआई का डेटाबेस आप अगर इसमें से देखेंगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड आप ढूंढ सकते हो। दीज आर ऑल रजिस्टर्ड वन, दीज आर ऑल रजिस्टर्ड। और इसमें से एक मैसूर सिल्क जो है उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली हूँ, दिस मैसूर सिल्क। और इसका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको यहाँ से देखने मिलेगा। एंड दिस इज जीआई नंबर 11। ओके, and this is penny, for that application number is 120. Then see under pending you can see basmati rice is there, but अल्फांसो मैंगो अभी 2-3 महीने पहले उसको जीआई मिल गया है। हैदराबादी बिरयानी जो है अभी चल रही है, हैदराबादी बिरयानी इट इज अंडर एग्जामिनेशन। So friends, I would like to conclude over here with a special note दैट हमारा भारत जो है वो समृद्ध और संपन्न देश है। ओके, और आपको पता है कि हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स है जिसमें 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 2 एपिक्स है, भगवत गीता, ब्रह्म पुराण, 18 पुराणास, मनुस्मृति, कौटिल्य शास्त्र, स्मृति से हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स है जिसमें नॉलेज डॉक्यूमेंटेड है। हमारा जो इंडिया है वो समृद्ध है इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में 26 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, उसमें केवल इंडिया हैज 16 एग्रो क्लाइमेटिक। हमारा फ्लोरा और हमारा फौना बहुत समृद्ध है, राइट। इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी संपन्न है, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ में आता है बायोपायरेसी, यानी ये ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो ट्रेसिंग के लिए डिफिकल्ट है। कभी कभी वो सिद्ध पुरुष होते हैं जो लेप वगैरह लगा के ठीक करते हैं, तो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज उनके साथ ही चला जाता है। तो ये सब चीजों का फायदा डेवलप्ड कंट्रीज ने लिया और इंडिया का एक एक ट्रेडिशनल नॉलेज चुरा के वो अपने कंट्री में पेटेंटिंग करने लगे। दैट वाज नोन एज बायोपायरेसी। देखिए हमारा जो मेडिसिनल सिस्टम है वो बना है आयुष से। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है, और हमारा आयुर्वेद बहुत रिच है, लेकिन ये ट्रेडिशनल नॉलेज का जो स्टीलिंग चल रहा था तो वो हम देखेंगे कि वो कौन सी गति से बढ़ रहा था। 2002 में केवल 7 प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का इंडियन ओरिजिन के उल्लेख यूएस पेटेंट्स में था, लेकिन 2004 में 15,000 पेटेंट्स में अपने प्लांट्स का उल्लेख था। फिर 2005 में वो नंबर 35,000 हो गया। तो इस गति से बायोपायरेसी होने लगी। एंड दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ बायोपायरेसी, टर्मरिक। उमन के दास और अरियल कोहली जो एक्सपैट्रिएट इंडियन थे, उन्होंने यूएस पेटेंट लिया हल्दी का फूड हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए, जो हमें सदियों से पता है और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो सीएसआर ने ये केस को लड़े और उन्होंने 32 एविडेंसेस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस दिए। उसमें से एक मेरे पास में है, ये देखिए, ये कहीं पे लिखा है, ये 1879 में लिखा था। ये दूसरा है, ये भी एक प्रूफ था। ये दो प्रूफ ओरिजिनल मेरे प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे। इसमें देखिए पहला
जो था उसका था हल्दी पाउडर टेकन डायरेक्टली एज ब्लड प्यूरिफायर, और यहाँ पे लिखा है वुंड हीलिंग। पेटेंट दिया गया 1995 में, लेकिन ये वुंड हीलिंग लिखा गया है 1879 में। मतलब उसके 100 से भी पहले, हाँ 100 साल से भी पहले हमको पता था कि हल्दी एंटीसेप्टिक है। तो नॉवेल्टी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया वो। दूसरा जो चोपड़ी मैंने दिखाया था उसमें भी देखिए ये वुंड हीलिंग यहाँ पे लिखा है हल्दी का, एंड इट वाज रिटन इन 1867 और पेटेंट वाज ग्रांटेड इन 1995। तो फिर हमने ये केस को जीते ऐसे 32 एविडेंसेस देके कोर्ट में, एंड क्लेम्स 1 to 6 आर कैंसल, वो पेटेंट को रिवोक कर दिया गया। लेकिन ऐसा कितना हम लड़ेंगे, नीम के कितने सारे पेटेंट्स गए हैं, हरडा गेला, बाबुल गेला, ओके, कितने सारे केसेस गए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया अंडर CSIR, और उन्होंने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। उन्होंने जो बाइबल्स है हर एक पैथी के, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, वो बुक्स एक्सपर्ट्स को दिए और उनको कहा कि जहां जहां मेडिसिनल प्लांट्स का उल्लेख है उसकी एक एक एंट्री बनाओ। तो उन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा एंट्रीज बनाई फ्रॉम दिस बुक्स, और ये एंट्रीज उन्होंने टीकेडीएल में पब्लिश कर दी। और हर एक पेटेंट ऑफिस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखा, बिफोर एग्जामिनिंग द एनी पेटेंट, आपको ये जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, इट इज डिस्क्लोज्ड लाइब्रेरी ऑफ अवर ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर उसमें उसका उल्लेख है तो यू कैन नॉट ग्रांट द पेटेंट। और उससे क्या हो गया, तो काफी सारी पायरेसी कम हो गई। अभी ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो होता कहाँ है, वो ट्राइबल पीपल में ज्यादा उनको पता होता है। एक ऐसा ही मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जाम्पल, एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई लेक्चर विद दैट। एक केरला में कानी ट्राइब करके एक है। तो एक जम्मू, मतलब RRL जम्मू के एक साइंटिस्ट थे पुष्पगदन, वो 1987 में गए एक्सकर्शन के लिए उनकी टीम के साथ में केरला, ओके। और केरला में उन्होंने, वहाँ पे जो कानी ट्राइब है उनका काम था कि ये जो पर्यटक रहते हैं उनको रास्ता दिखाना जंगल में, ठीक? तो उन्होंने कुछ केरला ट्राइब पीपल को, कानी ट्राइब पीपल को अपने साथ में लिया, और जब वो जा रहे थे जंगल में, तो कुछ देर के बाद में उन्होंने अपना फूड निकाला और खाना शुरू किया, और उन्होंने कुछ फूड उनको ऑफर किया, कानी लोग जो उनके साथ में थे। तो उन्होंने मना किया, और उन्होंने एक मतलब पेट ढूंढा और उसके जो फ्रूट्स थे ड्राई फ्रूट्स के जैसे वो निकाले और उन्होंने खाए। तो ये पुष्पागदन सर को नेचुरली उत्सुकता हुई कि क्या है, तो उन्होंने सैंपल्स लिए और RRL वापस गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। तो उसमें उनको 3 प्रॉपर्टीज मिली, एंटी फटीग, फिर शक्तिवर्धक और एक प्रॉपर्टी। उसके उन्होंने पेटेंट फाइल किए और फिर पेटेंट का उन्होंने कमर्शलाइजेशन किया। एक कंपनी को उन्होंने जीवनी ड्रग बनाने के लिए वो दिया, उसमें से जीवनी ड्रग बना, वो मार्केट में आया, देखिए ये आया। लेकिन उसका फायदा कानी ट्राइब को क्या हुआ, कुछ नहीं। तो वो चीज को केरला गवर्नमेंट के सामने पिटीशन के रूप में दिया गया, केरला गवर्नमेंट ने भी पॉजिटिव एक्शन लिए, और इनिशियली इन लोगों ने, जीवनी प्रोडक्ट वालों ने 6,50,000 रुपीज इनिशियली कानी ट्राइब को दिए, और उसके बाद में हर साल उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका 50% जो है वो कानी ट्राइब को जाता है। और इस वजह से देखिए उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या फर्क आया, पहले उनके घर ऐसे थे, अभी ऐसे है। पहले उनकी कंडीशन ऐसी थी, लिविंग कंडीशन आप देख सकते हो, और अभी वैसी। तो दिस इज ऑल अबाउट IPR, है ना। so traditional knowledge is really important. So friends, this is actually very briefly I have cleared the fundamentals of intellectual property right. So thank you so much. Yes, Preeti. Thank you so much, madam, for wonderful I have sessions. some minutes. Anybody has any doubt? Sorry for that. कोणाला काही विचारायचं आहे?
आज इतकं जास्ती नॉलेज मिळालंय मॅडम, त्यांना त्यांना काही समजत नसेल आता. नाही, इट्स ओके. येस मॅडम, सगळ्या नवीन गोष्टी तुम्ही सांगितल्या आहेत अँड इट्स व्हेरी युजफुल फॉर ऑल द रिसर्चर्स. So from all the participants, I extend my thanks to respected Dr. Mangala Hirwade madam. हॅलो Yes, yes. मॅडम, मला एक प्रश्न विचारायचा मॅडमांना. हा बोला. ते मॅडमांनी प्लेगरिझम चेकिंगच्या बद्दल सांगितलं, तर त्याच्यामध्ये आपण जवळपास इंग्लिश मध्ये जे आहे ते आपण चेक करू शकतो. मग आता जसं माझं पीएचडी जे आहे ते मराठी लँग्वेज मध्ये मी करणार आहे, तर मग मराठीमध्ये प्लेगरिझम कसं चेक करायचं? हा प्रॉब्लेम नेहमीचा. मॅडम, ते सध्या तरी तुम्ही चेक नका करू, कारण का की आपल्याकडे त्या सुविधा सध्या उपलब्ध नाही. त्याच्यावरती वर्किंग सुरू आहे रिजनल लँग्वेज वरती, पण सध्या देयर इज नो सोल्युशन ॲज ऑन टुडे. ओके मॅम. Any question? ओके मॅडम, थांबूया मॅडम इथे आपण. थँक्यू सो मच मॅडम वन्स अगेन. ओके, थँक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर bearing with me. Thank you. थँक्यू मॅडम. Thank you. Okay. Friends, now we will stop for the day. Tomorrow morning, we will be having sessions of Dr. Ashish Linge sir on unit 3 topics of hypothesis testing and other part. And in afternoon, you will be having seminars of sociology, social work and Marathi language. तो सोशोलॉजी, सोशल वर्क और मराठी जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किए हैं पीपीटी, प्लीज आज रात तक सबमिट करिए पॉजिटिवली. और बाकी के भी पार्टिसिपेंट जिनका सबमिशन बाकी है, प्लीज सबमिट योर प्रेजेंटेशंस बाय टुनाइट. ओके, Okay, madam. Thank you. see you tomorrow at 10:15. Okay, madam. Okay, good Thank day. you, madam. Bye.